take a look at Dewey's Rules of Water Safety. Now, if you ever find yourself in trouble in the water, relax. If there's an emergency, go to the nearest telephone and dial 911. You got it? Good. 47-year-old डेब्रा स्टीवन नॉर्मली अपना रूटीन पूरा करके अपने घर वापस आ रही थी न्यूज़पेपर डिलीवर करके, एंड अचानक ही रास्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू होने लग गई। एंड वो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो आगे चल के किसी को पता नहीं था कि वो एक फ्लड में कन्वर्ट करने वाली है। ऑफ कोर्स शी हैड अ जॉब टू डू, सो उसने जैसे तैसे करके फ्लड्स को डॉज करते हुए अपने न्यूज़पेपर डिलीवर कर ही दी थी। बट अचानक जब उसने अपनी गाड़ी को टर्न किया तो उसे नहीं पता था कि वहाँ से एक बहुत ही बड़ी वेव आ रही है फ्लड की, जिसकी वजह से उसकी जो कार थी वो कुछ पेड़ों में जाके टकरा गई। एंड इस सिचुएशन में पैनिक होते हुए डेब्रा ने 911 पे कॉल किया। I have an emergency, a severe emergency. I'm in a flooding. My car veered off the road while I was doing my newspapers, and I'm flooded over here on the end of Kincaid, and it's all the way up to my windows, and I can't get out, and I'm scared to death, ma'am. Can you please help me really bad? I need you to calm down. I need you to tell me where you are. मेकिंग कॉन्टैक्ट विद 911 ऑपरेटर डोना रिन्यू, डेब्रा ने बहुत ट्राई किया अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने का, बट अनफॉर्चुनेटली हर जगह पानी होते हुए वो खुद नहीं बता पा रही थी कि वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। I don't know, ma'am. I'm on the end of Kincaid down here by these apartments. There's some apartments on Kincaid. I don't know what they're called. What color is your vehicle? Yeah, dark. It's gray SUV, lady. The water's all the way up to my windows. Okay, hold on for me. Don't hang up. And you're at close to the area, 5801 Kincaid? Yes, ma'am. I need help right now. डेबरा की जो वॉइस है वो ही बहुत अच्छे से बता रही है यहाँ पे कि वो कितनी ज़्यादा पैनिक है। एंड ऑपरेटर ने भी पूरा मेक श्योर किया कि कोई ना कोई उसे रेस्क्यू करने आ ही रहा है वहाँ पे। पर जैसे जैसे सेकंड्स निकल रहे थे वैसे वैसे डेबरा का पैनिक एंड वरीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। You're not going to drown. Just calm down. Well, ma'am, it's all the way up to my chest. Okay, please help me. I understand. Hold on for me. I'm scared. I'm sorry. It's fine to be scared. You have a right to be scared. I'm scared. But this moment 911 call turned into some strange side. एंड जो 911 की ऑपरेटर थी डोना रिन्यू, उसका जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होना शुरू हो गया था। Somebody save me. Am I not on the phone with you trying to get you some help? Yes, Okay, but stop. somebody give me help before I die. I'm sorry. You're not going to die. I don't know why you're freaking out. It's okay. I know the water level is I'm high. scared. I understand that, but you freaking out doing nothing but losing your oxygen up in there. So just calm But down. are they not going to come get me? You said what? I'm sorry. When are they going to be here? As soon as they get there. Man, my phone's going to die, and they're not going to find me, and it's going to ruin my brand new phone. Do you really care about your brand new phone? I mean, you're over there crying for your life. Who cares about your phone? Hold on, okay? Oh, thank you. I'm sorry if I'm rude, but I'm scared. You're not being rude. I know you're scared. Just calm down for me. I'm scared. I've never had anything like this happen to me before. Well, this will teach you next time. Don't drive in the water. Couldn't see it, ma'am. I'm sorry, or I wouldn't have. I don't see how you didn't see it. You had to go right over it, so. No, ma'am. I was in a drive. I was in a parking lot. There was no water where I was at. Okay. The water just didn't appear. जैसे तुमने अभी रिकॉर्डिंग में सुना, ऑपरेटर डेब्रा को ही ब्लेम कर रही है कि वो इस सिचुएशन में जो फंसी है वो खुद की गलती की वजह से फंसी है, विच इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग। अभी कॉल को 15 मिनट हो गए थे, बट स्टिल देयर वाज नो वन टू सेव हर। अभी 20 मिनट निकल ही रहे थे कॉल पे। इस सिचुएशन पे डोना हंस देती है डेब्रा पे। I'm sorry, ma'am. What's your name? Donna. Donna, thank you for being here for me, Miss Donna. You're welcome. In between both apartment complexes on this street at the dead end. In the very back side, there's a bunch of trees. Right there, she showed 5801 at the end. Of course, this is the edgy situation between life and death, but suddenly this happened. Location, so don't hang up on me. Okay, where are you moving to? Tell me where it's going. Okay, tell me where you are. Listen to me, hold on. I'm on the phone with her right now. She is legit freaking out. She said the vehicle is now moving in the water and she doesn't know which way it's going, so stand by. Okay, stop. Bye. Okay, stop. Bye. Okay, stop. Bye.
I'm standing around the very back side of the apartment complex on the southeast side, and the only part of her car I can see is the roof and the dome light that's on in it. I can't get out there to her, and you're gonna have to wait out here to me to get to me. जब ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे, they just found a dead body of Deborah Stephen, and the heartbreaking thing was that Deborah was handicapped. In the last moment of her life on 911 call, the operator couldn't even make sure that कि वो सेफ है. जब ये चीज़ मीडिया में आई तो बहुत सारे लोग ब्लोड अप हो गए एंड उन्होंने उस पर डॉना रेन्यू पे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल चार्जेस लगाए, बट उस पर ऐसे कोई क्रिमिनल चार्जेस कभी लगे ही नहीं, क्योंकि डॉना रेन्यू ने 2 हफ्ते पहले ही एक नोटिस दे दिया था कि वो 2 हफ्ते बाद ये जॉब छोड़ देगी, एंड जो अभी उसने शिफ्ट लगाई थी वो उसकी लास्ट शिफ्ट थी डेब्रा स्टीवन के साथ, विच एक्चुअली शोज हर एटीट्यूड. एंड इसके 3 हफ्ते बाद ही जो डेब्रा की मॉम थी नैन्सी, उसकी भी डेथ हो गई थी. फैमिली मेम्बर्स ने ये क्लेम किया कि जो ये डेथ का कारण है वो बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए, जो उनकी बेटी थी. बट द फैक्ट इज डॉना रेन्यू नेवर इवन अपोलोजाइज्ड फॉर हर एक्शंस, एंड दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट केस एवर कम अक्रॉस. To her husband, she must be a companion, a sweetheart, a wife, and a mother. She must know how to make her home comfortable and inviting. सो जो हमारा अगला केस है वो जापान की एक बहुत स्ट्रेंज वेबसाइट है. टू अंडरस्टैंड दिस केस फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ जापान. सो जापान में डिवोर्स जैसी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती है, ना के बराबर होती हैं. अगर किसी को अपने एक पार्टनर से डिवोर्स लेना भी है तो उन दोनों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज दे हैव टू स्टिक टुगेदर. एंड अगर बाय चांस कोई डिवोर्स कर भी लेता है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली उन्हें नेगेटिव वे से निगलेक्ट कर देंगे एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं. एंड इसी की वजह से कपल्स को एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ता है, चाहे वो एक दूसरे से कितना भी हेट करें, चाहे एक दूसरे से वो कितना ही लड़े, बट दे स्टिल हैव टू स्टिक टुगेदर, विच लीड्स टू द राइज ऑफ जापान्स डार्केस्ट वेबसाइट्स datasheet.com, or in English we say husbanddie.com. This website actually takes the inspiration from the popular anime called Death Note, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो डेथ नोट नाम की बुक पे दूसरे बंदों का नाम लिखता है जिसे वो मारना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है, which ultimately leads to their desires. You know, it's kind of manifesting thing. datasheet.com वेबसाइट पे यूज़र्स मैनिफेस्ट करते हैं लिख के कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, एंड ये तो अभी कुछ भी नहीं, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्शन में कि वो क्यों चाहते हैं कि उनका हस्बैंड मर जाए. इस वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ अपनी इतनी सारी एलिगेशंस एंड बहुत अजीबोगरीब चीज़ें लिखेंगी जिससे अगर शायद वो पब्लिकली कहीं सुनाए तो पीपल मे गेट पेस्ड ऑफ. ये वेबसाइट बहुत बड़ी स्पेस प्रोवाइड करती है उन औरतों को टू शेयर देयर डार्क फीलिंग्स विद ईच अदर. एंड अगर बाय चांस इनमें से किसी एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो लड़की यहाँ पे आके बताएगी कि उसके हस्बैंड की डेथ होगी, एंड दे ऑल सेलिब्रेट टुगेदर. एंड इस वेबसाइट पे बहुत कॉमन चीज़ एक मेंशन की जाती है, गॉड ऑफ डेथ, जहाँ पे ये बिलीव करती है कि जो इनकी मैनिफेस्टेशन, इनकी जो प्रेयर्स हैं वो कभी ना कभी गॉड ऑफ डेथ के द्वारा आंसर की जाएंगी. एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज़ दिस कि वो बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड रखती हैं उन हस्बैंड्स का कि कितने की डेथ हो गई हैं, जिससे दूसरी औरतों को मोटिवेशन मिले कि उनकी भी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी होंगी. एंड इस वेबसाइट पे औरतें ये चीज़ें भी डिस्कस करती हैं, द डिफरेंट वे टू किल देयर हस्बैंड विदाउट गेटिंग कॉट. एंड यहाँ पे एक यूज़र एक्सप्लेन कर रहा था स्टेप बाय स्टेप कि वो अपने हस्बैंड को कैसे मार सकती हैं एक 1200 मिलीग्राम का एक सर्टन ड्रग दे के उसकी ड्रिंक में, जिससे उसका लीवर फेल हो जाएगा एंड किसी को भी नहीं पता चलेगा. एंड कुछ औरतें तो यहाँ तक ये क्लेम कर रही थी कि वो चाहती हैं कि अपने हस्बैंड से अच्छा वो खुद ही मर जाएं. बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन जो ये वेबसाइट है ये अभी भी एग्जिस्ट करती है एंड ये अभी भी एक्टिव है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट रैबिट होल्स ऑफ इंटरनेट. Its engines are warming up, and inside the cab sits Mr. Schroeder, the engineer who has driven locomotives for many years. The safety of all the passengers depends on his skill and watchfulness. Fire Department paramedic on 58, what's the address of the emergency? Yes, I'm on the Metrolink train. We just left Northridge. We had a collision with something. We have a whole bunch of people going out bleeding and on the floor. Is it a train? It's the Metrolink train.
12 दिसंबर 2008 911 पे एक कॉल आती है एक इंसान की जो सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था ट्रेन एक्सीडेंट की, जिसमें वो खुद एक ट्रेन के काउच में फंसा हुआ था। बट ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा हॉरिफिक थी कि इसे एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल था। बट इस केस में 83 माइल्स पर आवर की स्पीड से 2 ट्रेन कोलाइड की थी हेड ऑन, एंड इट वॉज एक्चुअली हॉरिफिक थिंग टू विटनेस। बहुत सारे पैसेंजर्स रेस्क्यू तो कर लिए थे, बट द क्वेश्चन वॉज दिस कि इसके पीछे रीज़न क्या था। अकॉर्डिंग टू NTCB, द नेट्रोलिंक पैसेंजर ट्रेन जिसमें कुछ 200 पैसेंजर्स थे, दे हैड गिवन अ रेड सिग्नल विच अलर्ट्स दैट टू इमर्ज ऑन द अपकमिंग ट्रैक, जिससे वो ऑनकमिंग यूनियन पैसिफिक प्राइट ट्रेन को अवॉइड कर पाएँ, जिसमें सिर्फ कुछ क्रू मेंबर्स ही थे। जिसमें यूनियन पैसिफिक ट्रेन को राइट जाना था, बट इंजीनियर रॉबर्ट फेल्ड टू हियर इट। Meanwhile, authorities are now confirming the engineer had been text messaging the day of the accident. कोलिजन से कुछ टाइम पहले रॉबर्ट अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेजेस करने में बिजी था। ऑफ कोर्स जो टेक्स्ट मैसेज थे उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया एंड ये इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 24 लोग मारे गए एंड 135 लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड थे। एंड दूसरी ट्रेन में चार्ल्स पेक थे। एंड नाउ हियर द स्टोरी टेक्स अ बिग टर्न। चार्ल्स की फियांसी एंड्रा कैट्स, जब उसे इस चीज़ का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि बोर्ड पे उस दिन चार्ल्स थे। जब एंड्रस चार्ल्स को कॉल करने वाली होती है तो वो नोटिस करती है कि चार्ल्स के ऑलरेडी ही बहुत सारे मिस कॉल्स हैं उसके फ़ोन पे। सो वो उसे इमीडिएटली ही कॉल करती है, बट आगे से कोई आंसर नहीं होता। बट द अनयूजुअल थिंग वॉज दैट कि कॉल कट होने के बाद ही चार्ल्स का एक उसके पास और कॉल आता है, जिसमें जब वो पिक करती है तो तब भी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड आगे से कोई भी नहीं बोलता। दिस थिंग हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इट वॉज लुकिंग लाइक कि चार्ल्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेस्परेट है कॉल करने को, बट आगे से कोई आंसर नहीं आ रहा। दिस थिंग हैपन्स विद द अदर फैमिली मेम्बर्स टू, एंड चार्ल्स के फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा ही वरिड होने लग गए थे इस सिचुएशन से। जब भी उसका कॉल आता दे यूज्ड टू चीयर हिम, वो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक्स देते थे कि वो ज़िंदा रहेगा, रेस्क्यू टीम आ रही है उसे बचाने के लिए, स्टे स्ट्रॉन्ग। बट स्टिल आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता था। बट इस कॉल की वजह से अथॉरिटीज़ ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो फाइंड कर ली थी। जब लोकेशन पे रेस्क्यू टीम पहुंची 12 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद, दे फाउंड चार्ल्स डेड बॉडी। चार्ल्स की जो बॉडी थी वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी उस इम्पैक्ट से कि हिलना तो दूर कि वो कॉल करने की हालत में भी नहीं लग रहा था। बट जो उसके ब्रदर, उसकी स्टेप मॉम, उसके फियांसी एंड उसके भाई, उसके बेटे के ऊपर जो कॉल्स आ रही थी वो कौन कर रहा था। टिल नाउ ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड है एंड इसके पीछे कोई रीज़न नहीं पता किसी को। टिल नाउ नो वन नोज़ कि इसके पीछे क्या रीज़न था। कुछ लोग कहते हैं कि इट कैन बी अ फोन ग्लिच, बट द स्ट्रेंज पार्ट इज दिस, चार्ल्स फोन वॉज नेवर फाउंड। सो हियर द वीडियो एंड गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टेल मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट एंड व्हाट वाज द वर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो, एंड मुझे और ऐसे टॉपिक सजेस्ट करते रहना कमेंट में। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।